You're watching Truth versus Hype. Is the battle for Banaras a one-sided contest in Narendra Modi's favour as it seems on the surface? Or has the arrival of Arvind Kejriwal, who's dropping anchor here for a few weeks, and the presence of a local Congress strongman made the fight more interesting? Over the next 30 minutes, cutting through the hyperbole with facts and ground reportage to unpackage the X factors of Banaras, one of the most closely watched contests of this election. On the streets of Banaras, a show of strength for their star candidate whose absence seems to make little difference to the raw energy. क्या रिस्पांस मिल रहा है अभी तक? पूरे देश नमो नमो कर रहा, पूरा देश बहुत ही भ्रष्टाचार है, बहुत ही गुंडागर्दी है। इस वजह से मोदी सरकार को हम लोग लाएंगे और एक इतिहास बनाएंगे। मोदी जी तो अभी यहाँ तक में आए ही नहीं है बनारस में कैंपेन करने, तो जब अभी तक नहीं आया तो उसका ये जब जिस दिन आ जाएंगे इससे ज्यादा आप लोग को रैली मिलेगी। But behind the hyperbole of a Modi wave, does the electoral history of Banaras justify the BJP's confidence? On the surface of it, Banaras doesn't immediately suggest a BJP bastion. Its large percentage of Muslims living largely amicably with a Hindu community that in itself is diverse. Apart from the Brahmins, Rajputs and Banyas found in most towns in UP, pockets of South Indians, Marwadis and Bengalis who've made Banaras their home over decades. But with the advent of Hindutva, that social fabric would come apart during election time, ensuring a consolidation of the Hindu vote that further ensured that the BJP held this seat virtually unbroken since 1991. And yet, as the BJP declined in UP, its fortunes waned here too. The Congress's Rajesh Mashra won the Banaras seat in 2004. While the BJP's Murli Manohar Joshi won the seat back in 2009, it was a narrow margin of about 17,000 votes, almost losing to Dawn-turned politician Mukhtar Ansari, who fought the elections from inside the Agra jail. Which is why in 2014, Modi's rivals are hoping that there might be chinks in the armour. This time, Mukhtar Ansari first announced his name but pulled out soon after. His brother, himself a candidate from the Balia seat east of Banaras, says Ansari acted on his conscience. मोदी जी बनारस में चुनाव लड़ने आए हैं तो मोदी कोई साधारण कैंडिडेट नहीं है। उनका मुकाबला करने के लिए सबसे रनर पोजीशन पे पिछले चुनाव में हम थे। दूसरे कैंडिडेटों से ज़्यादा मजबूत स्थिति में आज भी हैं। पांचों क्षेत्रों में संगठन है, लेकिन हम ये महसूस कर रहे थे, हमारे कार्यकर्ता हमसे कह रहे थे और हमें क्षेत्र में घूमने से ये एहसास हो रहा था कि अकेले लड़कर के मोदी को हरा पाना बहुत ही कठिन है और इसलिए हम ये पेशकश लेके आए कि एक साझा उम्मीदवार लाइए। But in the streets of Bajardiha, one of Banaras's many dense Muslim pockets, lie the answers to why Mukhtar Ansari may have pulled out. To those here, Mukhtar is a protector of sorts. पिछली बार आप लोगों ने मुख्तार अंसारी को वोट दिया ज्यादा? जी जी मुख्तार अंसारी को। अच्छा 99% वोट उन्हीं को गया पूरा का पूरा। किस वजह से? क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ये ऐसे थे कि मतलब जो तो मुसलमान थे। हाँ। और हम लोगों को मतलब जो तो मुसलमान का मतलब जो तो वोट मतलब उनको पड़ा। अभी वो कुछ देखभाल भी करते थे ऐसे मौके पे जब कोई यहाँ वारदात हुआ, दंगा हुआ, देखभाल भी करते थे? बहुत सहायता की। इसके बावजूद भी कि वो बहुत ही बड़े दबंगी माने जाते हैं, बहुत सारे अपराध हैं उनके खिलाफ। तो जहाँ होंगे यहाँ पर ऐसा कोई बात तो नहीं है, तुरंत आ जाते हैं, इसीलिए सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, बस मुख्तार भाई का ये वो तुरंत तत्काल खबर करते हुए चले आते थे। अपराध तो बहुत। But this time, once Modi's nomination was announced, it appears the city's Muslim community sent Mukhtar a clear message to back down. इस बार उन्होंने ठीक किया पीछे हटके, मुख्तार भाई ने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। मुसलमानों के हक में बहुत हक बढ़िया किया उन्होंने मुख्तार भाई कि वोट न बटे। हाँ, वोट न बटे। The key question is that with Mukhtar Ansari gone, will the Muslims of Banaras vote tactically? And if so, whom will they choose as the stronger challenger to Modi? At this stage, very few say Kejriwal, most say the Congress's candidate Ajay Rai.
वैसे ज़्यादातर जो है तो मुस्लिम वोट, ये जो नई पार्टी है आम आदमी और कांग्रेस, अच्छा, यही पे ज़्यादा जाएगा। मोदी जो खड़े हो रहे हैं उनको हम लोग छोड़कर ये जान रहे हैं, नरेंद्र मोदी अगर खड़े ना होते तो हम लोग को वोट इधर उधर जाता। जिससे नरेंद्र मोदी खड़े हो रहे हैं, हम लोग के विचार एकदम है कि अजय राय को वोट दिया जाएगा। अच्छा, पूरा बजटिया पूरे बनारस में। अच्छा, हाँ, एकदम ये कि कांग्रेस को वोट पड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी केजरीवाल नहीं, एकदम हम लोग की तरफ एकदम नहीं कट रहा है वोट कट रहा है। As Ajay Rai leads a huge procession to file his nomination, those voices to some extent would validate the Congress gamble in fielding him. Rai may not appear the most obvious choice for Muslims or for the Congress. He was in the BJP for much of his political career, switching to the Congress only in 2012. आप हिंदुत्व के वजह से बीजेपी में चले गए? हिंदुत्व से आप आकर्षित हो गए? हिंदुत्व की वजह से नहीं गया। अब मेनली मैंने देखा कि लोग काम साथ कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, कुछ इनकी सोच जैसा इन्होंने भरमाया था, जैसा अभी बनारस की जनता को भरमा रहे हैं, ऐसे ही कुछ भ्रम पैदा कर दिया था। पर निश्चित तौर पे चीजें भ्रम टूटा और सारी चीजें समाप्त हुई। तो कैसे आप? Rai is also an odd recipient of the indirect support he now receives from Mukhtar Ansari. Ansari was accused of killing his brother Avdesh Rai in an act of inter-gang rivalry. A bloody reminder of how Avdesh Rai too is implicated in the gangland politics of eastern UP. ये ताजुब की बात है क्योंकि आरोप लगाया जाता है कि आपके खुद ब्रदर की हिंसा मुख्तार अंसारी साहब ने की थी। तो बिल्कुल आपके तो मतलब आप दोनों की तो एकदम नहीं, तो मैंने कहा नहीं, दुश्मनी जो चीजें हैं वो तो चीजें अलग हैं। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि मेरा कोई संपर्क नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, और पार्टी के लोग अगर कोई डिसाइड करेंगे। आप मानते हैं, यू एक्सेप्ट दैट ही इज द पर्सन हु मर्डर्ड योर ब्रदर? नहीं, वो तो न्यायपालिका में है, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा के अंदर अब न्यायपालिका क्या निर्णय करेगा, न्यायालय में तो चीजें विचारा। आप तो बड़े सॉफ्ट हो गए मुख्तार अंसारी साहब के खिलाफ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि न्यायालय में मुकदमा, इतने बड़े वो नामी गिरामी वो हैं, मेरे बाहुबली हैं, इतने न्यायालय चार्जेस हैं। नहीं, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और न्यायालय में चीजें चल रही हैं और निश्चित तौर पर उसमें जो निर्णय होगा उसको सब मानेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपके खिलाफ जो इतने सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं, 3 charges attempt to murder, 6 charges of rioting, 4 charges armed with deadly weapon, 5 voluntary causing hurt, 6 charges of criminal intimidation। ये तो मैं सीरियस चार्जेस बता रहा हूँ। इतने चार्जेस के साथ आप लड़ रहे हैं चुनाव, इससे क्या सिग्नल जा रहा है जनता में? ये सब पुराने होंगे और जो पॉलिटिकल जो पूरे के पूरे प्लांट करके मुझे फंसाया गया, मुझे मैं बसपा की सरकार अभी थी, बसपा ने पूरे तरीके से कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ। मैं नहीं गया, मैंने कहा मैं मुझे जो भी करना आप कर डालो, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे ऊपर तमाम मुकदमे, 4 मुकदमे इस समय इधर लगा दिया। And yet the Congress gambled on him, for one because he is a Bhumihar Brahmin who with 1.25 lakh votes are a significant factor in Banaras. मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, हमसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? मैं सबसे पूजा पाठ सबसे ज्यादा करता हूँ, सबसे ज्यादा धर्म को मानता हूँ, सबसे ज्यादा मंदिरों में जाता हूँ। मेरे घर में पूजा मेरी पत्नी करती है, मंदिर में, घर में मंदिर बना। तो आप कह रहे हैं ब्राह्मण आपके साथ हैं, बाकी वैश्य कम्युनिटी? देखिए वैश्य ये हमारे रामू गुप्ता आ गए हैं, हमारे पिंडरा के हैं, ये वैश्य कम्युनिटी के हैं। हमारे देखिए मुस्लिम है, ये ठाकुर राजपूत हैं, ये मुस्लिम्स हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, अब मुस्लिम्स हैं। इधर देखिए वैश्य लोग बैठे खड़े हैं हमारे, ये देखिए वैश्य हैं, हमारे जैन, ये हमारे जैन हैं, ये अग्रवाल हैं पीछे खड़े हैं। Rai, however, is emphatic about his main selling point that he is a local boy. बनारस में इस बार सन ऑफ सॉइल, धरती पुत्र की लड़ाई है। बनारस में अपनी मिट्टी का जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वही सांसद चुनकर यहाँ से जाएगा। और बनारस के लोग बाहर के लोगों से तंग आ चुके हैं, बाहर के लोगों से परेशान आ चुके हैं। बनारस के लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते, बनारस के लोग अपना सेवक चाहते हैं, अपने घर का व्यक्ति चाहते हैं, अपने परिवार का सदस्य चाहते हैं। Outside the college grounds, an AAP volunteer tries to convince the people of Banaras to attend Arvind Kejriwal's inaugural Q&A session. हम लोग का गिरेबान पकड़ना, केजरीवाल दिल्ली में होंगे, हम हमारा गिरेबान पकड़ना। एक बात है, हाँ बोलो। आपने बड़ी अच्छी बात कही, चुनाव के समय सभी लोग दिखाई नहीं, मैं यही रहती हूँ, Kejriwal is keen to make a splash. The entry into Banaras has been greeted with skepticism.
Posters have sprung up describing him as a bhagoda, someone who ran away from Delhi. As he takes stage, perhaps it's these anxieties which lead him to adopt the quasi-religious vernacular of the city. हर हर महादेव। गीता में लिखा है ना, जब जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। Earlier, in another gesture to political convention, he met a prominent Muslim cleric, about which I asked him in an interview. But this business of going and meeting one qazi one day, one priest another day, aren't you falling into the same trap? So the politics of tokenism of India? No, but isn't this the kind of politics of tokenism of the mainstream parties which you're supposedly against? मैंने उनको क्या कहा? मैं सबके पास प्यार और मोहब्बत का मैसेज लेके जा रहा हूँ। सबको यही, कल आपका सारा मीडिया था, बातचीत सारे मीडिया के सामने हुई है, कोई छुप के नहीं हुई, अलग कमरे में नहीं हुई। उनको जो जो मैंने कहा आप एक बार ही देखो। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा साहब इस देश को पार्टियों ने हिंदू मुसलमान जातियों के नाम पे बांट दिया है, अब हम सब लोगों को मिलकर एफर्ट करना पड़ेगा। But as the Q&A event progressed, for all the tokenism that Banaras might require, Kejriwal remained, well, Kejriwal, taking questions on his so-called quitting and more with crowd-pleasing candor. कमलेश कांत गुप्ता जी एडवोकेट, अगर हैं तो खड़े हो जाएं, जरा हाथ खड़ा कर दें। हाँ वो खड़े, सफेद शर्ट। श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको पाकिस्तान का एजेंट कहा, आपने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से क्यों नहीं की? चुनाव आयोग को शिकायत करने की जरूरत नहीं है जी, चुनाव आयोग कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन जनता करेगी, इस बार जनता सबक सिखाएगी। श्री अरविंद जी से मेरा सवाल है, वे जब मुख्यमंत्री बने तब वे जनमत संग्रह कराया, इस्तीफा देने से पहले जनमत संग्रह क्यों नहीं कराया? मैं आपकी बात से सहमत हूं जी, ये गलती हुई हमसे। हम छांट नहीं रहे जी, हम वैसे ही निकाल रहे हैं। मोहम्मद मुश्ताक खान, दिल्ली में आपने सरकार बनाया तो जनता से पूछकर बनाया, जबकि आपने इस्तीफा दिया तो ये मैंने जवाब दे दिया ऑलरेडी। The session ends with what could be at best a wishful appeal. अगर नरेंद्र मोदी हार गए यहां से, वाराणसी से हारे हुए नरेंद्र मोदी को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाला। वाराणसी से हारे हुए नरेंद्र मोदी को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, बीजेपी खत्म हो जाएगी दोस्तों। For this not to be wishful thinking, the Aam Aadmi Party needs to make a genuine ground impact in Banaras. The current door-to-door campaign in Banaras seems muted, the numbers thin on the ground, a party stretched for manpower. ये हम लोगों का फर्स्ट राउंड डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है। अभी हम लोग सिर्फ पर्ची बांट रहे हैं और एक फर्स्ट राउंड इंट्रोडक्शन जैसे उस टाइप का दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं इसका एक तरह से फर्स्ट इंट्रोडक्शन वोटर्स को देने के लिए, और ये पूरे जिले में चल रहा है। The other chink in the BJP's armour sought out by Modi's rivals is here in Sevapuri on the edges of Banaras. Of the 5 assembly seats that make up the Banaras Lok Sabha constituency, 3 are urban, all won by the BJP. But Rohania and Sevapuri in rural Banaras are exceptions, dominated by Kurmis, the OBC caste loyal to the Samajwadi Party. The BJP has forged an alliance with the local Kurmi party. But even without that, here too there is talk of Modi. मेरा वोट जाएगा मोदी सरकार को। हम लोग तो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार किसको आप सोच रही हैं देने? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? और जैसे कि उनका अच्छा वो है, जैसे गुजरात में किए हैं, उनका सपना है कि हम यूपी को भी इसी तरह करेंगे। Coming up, the BJP says it's a no contest for them, but despite that, they're running an Aam Aadmi Party style campaign on the streets of Banaras.